नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंजर। सिलसिले को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले देखते हैं आज का एजेंडा। चुनिंदा लोगों के लिए है मोदी सरकार। सोनिया गांधी का बीजेपी सरकार पर कड़ा प्रहार। खाली पड़े संवैधानिक पदों का भी उठाया सवाल। और कांग्रेस के वॉकआउट, एआईएडीएमके के विरोध के बीच लोकसभा से जीएसटी बिल पास। बड़ा सवाल, क्या राज्यसभा की अड़चन पार कर पाएगी सरकार? तो आज के एजेंडे में दो अहम मुद्दे, दोनों ही राजनीति से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि आखिर कांग्रेस में एक तरह से जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी सक्रिय हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने आक्रामकता दिखाई है केंद्र सरकार को लेकर, नरेंद्र मोदी सरकार पर जिस तरह से तीखे प्रहार किए हैं, आखिर इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं? क्योंकि साल भर पूरा होने वाला है नरेंद्र मोदी को सरकार गठन किए हुए। ऐसी स्थिति में कई तरह से निगाहें भी लगी हुई हैं कि आखिर साल भर सरकार ने क्या कुछ किया है और विपक्ष को ऐसे में जिस तरह से ये मुद्दा मिला हुआ है उसकी क्या कुछ सच्चाई है और कितनी इसके अंदर हकीकत है। तो तमाम तरह के पहलू हैं कि चूंकि कई तरह के आरोप यहां पर सोनिया गांधी की तरफ से लगाए गए हैं। एक एक पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर आड़े हाथ लिया। The deplorable lapse of the government in not appointing a chief information commissioner. This post has been lying vacant for more than 8 months, resulting in a virtual standstill in the functioning of the Central Information Commission established by the UPA through the landmark RTI Act. In addition, the posts of 3 information commissioners in the CIC have been vacant for almost a year. The UPA government had ensured that the crucial post of the Chief Information Commissioner was never vacant from the day the RTI came into force. Today, in a blatant U-turn, his government has made sure, through the absence of a CIC, that the highest offices of power, such as the Prime Minister's office, the Cabinet Secretariat, the Supreme Court, High Courts, the CAG, the Ministry of Defense, and other important ministries are not accountable for violations under the RTI Act and are protected from wider public scrutiny. Our citizens no longer have the right to question their government. Multiple reports in the public domain make clear that more than half the information commissions in the country lack adequate infrastructure, causing long delays in the disposal of cases. Information delayed is information denied. On March 11, 2015, the DOPT, which is under the PMO's control, transferred the financial powers of the CIC to a government-appointed secretary. Such a post has no mention in the original RTI Act. There is no provision in the Act that allows the government to take over the Commission's functioning in the absence of the CIC. Why the 2 posts of the Central Vigilance Commissioner and the Lokpal remain vacant? Whistleblowers Protection Act 2011 has not yet been put in effect, even though it received presidential assent in May 2014. The government must match its words on fighting corruption with action. Through you, I urge that these vacant posts be filled, RTI requests dealt with as they should be, and the oversight process of the government not be hindered any longer. लेकिन जब सोनिया गांधी बाहर निकली तो वहां पर अलग अंदाज से उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया। क्या कुछ सदन के बाहर आकर के उन्होंने कहा, वो भी सुने।
The government has no answer, and at this point, they might as well scrap the RTI Act. ये एक बहुत मजबूत औजार है गरीबों के हाथ में। सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि हमारा पैसा कहाँ है, प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया कि नहीं, ठीक है। करोड़ों लोग के हाथ में ये हक हम लोग ने दिया, यूपीए सरकार ने दिया, और ये लोग ये हक लोगों से छीन रहे हैं। ये गलत बात। और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, जो कि पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, आइए वो भी सुनते हैं। जब हमारी सरकार थी, ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। आपको याद होगा लोकपाल का इशू चला था। आरटीआई कमिश्नर, लोकपाल, सीवीसी, ये तीनों अपॉइंटमेंट्स सरकार ने नहीं की हैं। ये तीनों अपॉइंटमेंट्स रोक के रखी हुई हैं। अंदर कह रहे हैं कि प्रोसेस चल रही है। हमने सवाल पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको प्रोसेस रोकने का नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको डिले करने का नहीं कहा है। महीने हो गए हैं, साल हो गया है, ये जो पोस्ट हैं खाली पड़ी हुई हैं। क्यों खाली पड़ी हुई हैं? क्योंकि सूट बूट की सरकार जनता से जमीन छीनना चाहती है, और उनके जो उद्योगपति मित्र हैं, 6, 7, 8 उद्योगपति मित्र हैं, उनको हिंदुस्तान की पूरी शक्ति उनके हाथ में देना चाहती है। तो राहुल गांधी भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सूट बूट की सरकार है, और कई तरह के यहां पर जो है आरोप लगाए गए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन पहले हम अपने मेहमानों का परिचय कराते चले। हमारे साथ मिथिलेश प्रसाद जी हैं, जो कि जेडीयू के नेता हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ आनंद साहू साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ नीता मिश्रा जी हैं, कांग्रेस की नेता हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार, उपेंद्र प्रसाद, भूपेंद्र धर्मानी, ये दोनों भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इन दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले उपेंद्र जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर जिस तरीके से जो आक्रामकता यहां पर राहुल गांधी की नजर आई है, सोनिया गांधी की नजर आई है, आखिर इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, लोकसभा चुनाव में हारने के बाद 10 महीने तक कांग्रेस है जो असमंजस की स्थिति में रही। कांग्रेस के दोनों नेता लगभग चुप रहे। इन्हें पता नहीं चल रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि अब विपक्ष, मुखर विपक्षी की भूमिका इन्होंने निभाना शुरू कर दिया है, सोनिया गांधी ने भी और राहुल गांधी ने भी। नहीं तो जो कोप भवन में रहने की बात थी, वो फिलहाल सारा मामला खत्म हो गया। अब एक कोप भवन अब क्या था, ये तो उपेंद्र जी, कोप भवन नहीं, जब पहले तो कह दिया हनीमून पीरियड है सरकार का, तो आखिर कुछ समय तो हनीमून के लिए भी दिया जाए उनको। नीता जी, हम आपके पास आ रहे हैं। इसमें यह है कि अब ये लोग कांग्रेस को नहीं कुछ कर पा रही थी, विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही थी। पिछले जो हुए थे उसमें कभी टीएमसी, कभी बीजेडी, कभी एआईडीएमके, लेकिन कांग्रेस बहुत प्रभावी रूप से नहीं काम कर रही थी। लेकिन ये अच्छी बात है, भाई विपक्ष है तो विपक्ष की भूमिका में आना चाहिए। विपक्ष है जो लोकतंत्र का एक आधार, मजबूत आधार स्तंभ है। अगर विपक्ष कमजोर होगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। खास करके विपक्ष का काम होता है कि सरकार की जो नाकामियां हैं उसकी ओर उंगली उठाना, और ये उठा रहे हैं दोनों। आज जो भी सोनिया गांधी ने कहा या राहुल गांधी ने कहा, उसमें बहुत हद तक सच्चाई है। थोड़ी बहुत राजनीति है, लेकिन राजनीतिज्ञ है तो राजनीति करेंगे ही। वो एक भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है राजनीति करना। और ये हमें लगता है कि ये अच्छा, एक शुभ संकेत है कि ये सरकार की कमियों की ओर ध्यान दिला रही हैं, और बहुत प्रभावी ढंग से ध्यान दिला रही है। क्योंकि वास्तव में जो ये बातें कह रही हैं कि भाई सीबीसी का पोस्ट खाली है, लोकपाल का अभी तक नहीं हुआ है, और ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो भी पोस्ट खाली है, तो ये जो तीनों पोस्ट है वो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने के लिए, या भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर जांच स्थापित करने के लिए यही है। तो ये जो सरकार जो बनी है, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, अन्ना के जो आंदोलन हुए हैं, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, उसी कारण सरकार बनी है। अगर वो उतना बड़ा आंदोलन नहीं होता पूरे देश में तो हमें नहीं लगता है कि इनकी सरकार बनती। तो ये सबसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इनकी सरकार बनने का, वो है भ्रष्टाचार विरोधी माहौल। और भ्रष्टाचार विरोधी माहौल के बाद आपने सरकार बनाई, लेकिन भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने के लिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश रखने के लिए जो 3 सबसे महत्वपूर्ण पद हैं, सीबीसी, वही एक तरह से रिक्त पड़े हैं। और वो तीनों के तीनों पद रिक्त हैं।
तो फिर एक जिसके लिए आप बोलेंगे कि ठीक है हमने विकास के लिए एजेंडे पर मांगा, आपने क्या मांगा क्या नहीं मांगा अलग बात है। विकास तो बहुत सारे अलग अलग उसका कंसेप्ट होता है, कौन विकास है क्या विकास नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार तो स्पष्ट है। तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, और दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी हारी है उसका भी यही कारण है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल लोगों की नजर में बेहतर साबित हुए। तो दिल्ली के चुनाव से सबक लेकर के भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि विकास नहीं भ्रष्टाचार लोगों के वो नहीं। तो आपका मानना यह है कि ये जो भी इश्यूज उठाए जा रहे हैं बिल्कुल जेन्युइन है? बिल्कुल जेन्युइन है, और इसमें कोई राजनीति नहीं है। राजनीति तो करेंगे ही थोड़ी बहुत, लेकिन राजनीति करना कोई गलत नहीं है। राजनीति नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? आप राजनीतिज्ञों से राजनीति नहीं करने की उम्मीद कर रहे हैं तो ये गलत उम्मीद है। तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये भी स्वस्थ राजनीति लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ये आवश्यक है। तो हमें लगता है कि एक अच्छी बात है, एक अच्छा आज जो सोनिया गांधी का जो भाषण हुआ है बहुत पॉइंटेड भाषण हुआ है। विपक्ष नेता के रूप में इस तरह का भाषण देना हमें लगता है इससे सरकार और से बेहतर काम करवाया जा सकता है, इसलिए बेहतर को मैं मानता हूं। धर्मेंद्र जी आपसे समझना चाहेंगे, हालांकि जो है उपेंद्र जी ने यहाँ पर कहा कि कहीं ना कहीं अगर विपक्ष जो है अब थोड़ा सा प्रभावी तरीके से एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह की स्थिति इस वक्त सदन के अंदर बनी हुई है, ऐसा लगता है कि शायद विपक्ष नाम की कोई चीज फिलहाल जो है नजर नहीं आती, क्योंकि पूर्ण बहुमत की यहाँ पर सरकार है और जिस तरह के हालात देखने को मिलते हैं, जिस तरह से बिल पास होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज को जाहिर भी कर देता है। आखिर किस तरह से आप इस पूरे भाषण को देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जो है वो तो एक अहम भूमिका निभाए, इससे बढ़िया तो जनता के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन दुर्भाग्य से जैसे अभी बात हो रही थी कि पिछले 10 महीने से तो वो सोए ही हुए थे, और शहजादा जो हैं वो तो कहीं और ही घूम रहे थे। लेकिन जो आज आपने बात कही, अगर इनके पूरे भाषण को भी आप सुने तो उस पूरे भाषण में जैसे जिन जिन ऑर्गन्स की वो बात कर रहे हैं, हालांकि ये मुद्दा बीजेपी के नेताओं का है, मेरा नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो आपने कहा ना राजनीति की बात। लेकिन अब तो सरकार चेंज हो गई है ना। मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। हाँ। सरकार पे मैं तभी विपक्ष की बात हो रही है कि विपक्ष मजबूत हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और पूर्ण बहुमत की सरकार हो, उसमें विपक्ष और भी प्रभावी भूमिका निभा सकता है, लेकिन अभी तक नहीं निभा पा रहे थे। आज वो बोले हैं पहली बार, तो अच्छा लगा कि कुछ ना कुछ उन्होंने मुद्दे उठाए। अब उन मुद्दों में राजनीति की जो आपने बात कही, राजनीति तो स्वाभाविक रूप से राजनीति है ही। जैसे आप अगर वो सीवीसी की जैसे बात करें तो, या सीआईसी की बात करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंफॉर्मेशन कमिश्नर की अगर वो बात करते हैं, तो 1 साल से खाली पड़ा है। सरकार को तो बने अभी 1 साल भी नहीं हुआ, वो भर के जा सकते थे। मेरा 8 महीना आपने, मैं कुछ और कह रहा हूं, 8 महीना से सीवीसी का खाली पड़ा है। मेरा ये कहना है कि आरटीआई एक्ट की, जैसे उन्होंने अपने आप को श्रेय देने का प्रयास किया, आरटीआई एक्ट कब से लंबित पड़ा है हम सबको पता है। हम लोगों ने, मीडिया ने कितना उसके लिए एफर्ट किया है, और एनडीए सरकार ने उसको मूव किया आगे। अब वही श्रेय अगर मूव किया होता तो उस पे बहस ना होती। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राजनीति हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज के हित में हो तो अच्छा लगता है। और आज वो बोले हैं, ये अच्छा संकेत है कि विपक्ष अब सक्रिय भूमिका में आ रहा है। पर इसके साथ जो जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, उन सब मुद्दों पे वो स्वयं, जैसे कहते हैं ना, क्योंकि सरकार उनकी बहुत लंबे समय तक रही, और ये जितने भी चीजें उन्होंने गिनवाई हैं, इन सब चीजों की अकाउंटेबिलिटी उनकी अपनी भी बनती है। इस सरकार के साथ अभी समस्या ये है कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये नियुक्तियां होनी चाहिए थी, ये अहम नियुक्तियां हैं, और ऐसे ऑर्गन्स की, ऐसे संस्थानों की हैं जहां से कि भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए एक मतलब अहम रोल प्ले किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें अभी तक सरकार 1 साल होने के बावजूद फेल रही है। पर सवाल यह है कि इसको प्रभावी ढंग से आज तक क्यों नहीं उठाया गया, 1 साल तक क्यों वेट किया गया? ठीक है, हम समझेंगे कि आखिर इसे अब तक क्यों नहीं उठाया गया। चूंकि छोटे से ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद जो और हमारे मेहमान हैं हम उनसे भी उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। जल्द वापस लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से सोनिया गांधी और कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हुई है, आखिर उसके पीछे की राजनीति क्या है, जो मुद्दे उठाए गए हैं वो कितने जेन्युइन हैं, क्या महज ये राजनीति का हिस्सा है या इसमें भी किसी तरह की कोई सच्चाई है। इन तमाम चीज़ों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले दो जो हमारे मेहमान हैं, एक मेहमान का साफ तौर पे ये कहना था कि इश्यूज जेन्युइन हैं और सही समय पे जो है एक तरह से विपक्ष अपने आप को यूनाइट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरे मेहमान का ये कहना है कि नहीं, अभी इतनी देरी से क्यों उठाए गए। कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है। नीता जी, आप ही से जानना चाहेंगे कि आखिर जो धर्मानी साहब कह रहे हैं कि आखिर ठीक है लोकसभा में हार हुई और साल भर का वक्त जो है बीत चुका है, बावजूद इसके इतनी देरी क्यों है। अगर जेन्युइन इश्यूज है और जो है विपक्ष में आप सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है, तो ऐसी स्थिति में जो है इतने देरी से इन मुद्दों को क्यों उठाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं धर्मानी जी को याद दिलाना चाहूंगी कि सेंट्रल विजिलेंस सीवीसी या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इन सबके जो रिक्त स्थान नहीं भरे गए, इसके बारे में कांग्रेस ने पहले भी आवाज उठाई थी और पहले ये कह दिया गया था कि समय अभी कुछ समय चाहिए ये रिक्त स्थान भरने के लिए, समय चाहिए उनको सब चीजें ऑर्डर में करने के लिए। तो पहले आंकलन होना शुरू हुआ 100 दिन का, तो 100 दिन अभी बहुत कम है, फिर हुआ 6 महीने का। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक तरफ तो बात उठती है कि अभी सरकार अभी नई बनी है तो उसको समय चाहिए है थोड़ा सा सब कुछ समझने के लिए और चीजों को सही करने के लिए, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि तुरंत ही ऑपोजिशन सक्रिय क्यों नहीं हुआ। तो पहले तो ये अपने दिमाग में क्लियर करना चाहिए कि क्या होना क्या चाहिए। मेरी समझ में अगर नई सरकार बनी थी और उसको कुछ समय चाहिए था अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, उसके उस समय कहीं ज्यादा समय देने के बाद अगर आज कांग्रेस इतनी सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभा रही जो उसको निभाना चाहिए था कि विपक्ष में होते हुए जो भी कमियां हैं उस पर सवाल उठाने, तो मुझे ही नहीं समझ में आ रहा कि इसको लेकर के अब इतनी आवाजें क्यों उठ रही हैं। ये तो बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगी कि इस सरकार को मौका दिया गया कि जो नहीं कर रहे हैं, वो जहां परफॉर्मेंस नहीं हो रही वो होनी चाहिए। जब बिल्कुल ही देखा गया कि नीता जी, एक मिनट में आपको इसमें टोकूं, ये जो नियुक्तियों को लेकर मैं ये कह रहा हूं कि सक्रिय होना अच्छा है, लेकिन आप मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। मुझे ये लगता है जो आप पदों की बात कर रहे हैं जो खाली पड़े हैं, जिनके अगर भर दिया जाए, वहां पे अगर कोई कंप्लेंट आएगी तो अभी इस सरकार की परफॉर्मेंस पे नहीं आएगी, वो आपकी सरकार की परफॉर्मेंस की कंप्लेंट आएगी। क्योंकि एक साल जो एक जो कोई भी अगर आप सीवीसी की भी रिपोर्ट उठा ले या आप सीआईसी की कोई बात करें, सीआईसी में तो अगर कोई जानकारी नहीं मिले उसकी बात होती है। और अगर एक मिनट अगर सीवीसी की बात होती है तो सीवीसी ने ही आपके स्कैम निकाले थे आपकी सरकार के। मुझे यह लगता है कि सीवीसी और इसके ऊपर विवाद की बजाय सरकार की परफॉर्मेंस पे वो अटैक करते कि उन्होंने ये कहा ये नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि ज्यादा प्रभावी रहता। मेरा ये कहना है नियुक्तियों को लेके ये जो बोलना है ना, ये कोई सरकार की कमी के साथ साथ नहीं, सरकार इसमें कमी है, मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि कमी है, लेकिन इस कमी के साथ आप उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं, मेरा ये कहना है। देखिए, परफॉर्मेंस को तो लगातार इवेल्युएट किया जा रहा है धर्मानी साहब, तो उसमें बोलना चाहिए था ना, इसमें बोलना चाहिए था कि सरकार ने क्या नहीं किया और जो किया उसमें क्या कमियां हैं, ये कहना चाह रहा हूं। लगातार सरकार की परफॉर्मेंस पर कांग्रेस से ज्यादा मुझे लग रहा है कोई और पार्टी नहीं, बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व में बाकी पार्टियां भी एकजुट होकर के अपनी आवाज इसके खिलाफ उठा रहे हैं कि कहां पर सरकार बहुत ही धीमी गति से या तो चल रही है या एकदम ही निष्क्रियता अपनी दिखा रही है। इस पर तो लगातार ही विपक्ष अपनी उंगली उठा रहा है, लेकिन आज बात जो उठी है वो इन 3 मुद्दों को लेकर के उठी है। आज क्या कई पिछले कुछ दिनों से तो जिस तरह के आरोप यहाँ पर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं सोनिया गांधी की तरफ से मोदी सरकार के ऊपर, वो बहुत गंभीर है। तो बिल्कुल गंभीर है। तो उन आरोपों को देखिए, हर चीज के लिए समय दिया जाता है, इसलिए इस सरकार को भी समय दिया गया। अब वो इस चीज को इतना लाइटली लिया गया है सरकार के द्वारा कि अब समय आ गया था कि लोगों के सामने भी सच रखा जाए और इस बात को ऐसे मंच से कहा जाए जहां से ठीक से सरकार को सुनाई दे। मिथिलेश जी, क्या लाइटली लिया गया है तमाम चीजों को? देखिए, मोदी सरकार जी का जो अभी परफॉर्मेंस जो हुई है, काम करने की जो तरीका है, और ये हम जो 3 पोस्ट है, इस पर अगर पदाधिकारियों का नियुक्ति नहीं हुई है या लोग नहीं नियुक्त किए गए हैं, इसके पीछे बहुत सारी कारण है।
नहीं, किस तरह की कार्यशैली की बात कर रहे हैं? लोग वाहवाही कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कार्यशैली अजीब सी है। नहीं, कार्यशैली तो अब कह रहे, दरबानी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस की पर भी अंगुली उठेगा, सरकार जो है उनकी थी। अरे भाई, उठती तो अच्छी बातें थी ना, आप तो उसको बहाल कर लेते, लेकिन आपने भी तो है कहीं न कहीं ढीला रवैया अपना रहे हैं, यानी आपके अंदर भी कुछ न कुछ कमियां या कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिसके चलते आप ये तीनों जगह जो है आप खाली रखे हुए हैं। सवाल उठता है कि कहीं न कहीं मंशा सरकार की कहीं न कहीं भेदपूर्ण है और मंशा साफ नहीं। मैं जो है सारे लोगों का आनंद आ रहे हैं, जरा बात पूरी कर ले वो। तो इसलिए मतलब है ऐसा लग रहा है कि इनकी मंशा भी कहीं न कहीं थोड़ा सा गड़बड़ है और सरकार की मंशा गड़बड़ है। हाँ, सरकार की मंशा गड़बड़ है, इसलिए हम पद है। अरे भाई, जो पूरे देश का जिसपे करप्शन से लेके हर चीज उस पर बैन किया जा, रोका जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, उस पर अहम पद पर आप नहीं नियुक्ति कर रहे हैं, भाई सोचने वाली बात है। ठीक है आनंद। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी वक्ताओं का सुना कि पहली बार अपोजिशन जो है सक्रिय हुई है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार का जो निष्ठा और जो उनका जो उद्देश्य है देश को विकसित करने का, तमाम योजनाओं को लागू करने का, अभी भ्रष्टाचार उजागर करने का जो उद्देश्य है, उसके ऊपर ये सारे तंत्र हैं। अभी हमारा ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई काम रुका हुआ है। ये जितने पद अगर नहीं भरे हैं, अगर कोई अगर डिले हुआ है तो भी सरकार की जो कोई भी कार्य है वो रुके नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, सरकार का ही काम है, नियुक्ति करना सरकार का काम है, मैं कह रहा हूँ कि आज 1 साल होने वाले हैं सरकार को, और तमाम विषयों पर सरकार की गति जो है पिछले 50-60 वर्षों में जो गति रही है उससे अधिक है और पॉजिटिव है। और भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं है हमारे ऊपर। हमारी सरकार नीट एंड क्लीन। नहीं, आप कह रहे हैं कि आरोप नहीं है। सोनिया गांधी का जो आरोप है वो यही है कि रिक्त पद इसलिए पड़े हैं क्योंकि आप अपने घोटाले को छुपाना चाहते हैं। विपक्ष जो है आपके ऊपर, अंजर जी, मिथिलेश जी, आप सबको मैं सुना, वो कह रहे हैं विपक्ष जो आवाज उठाई कि ये 3 चीजों में डिले क्यों हुआ, आपकी मानसिकता साफ नहीं है, इसलिए डिले हो रहा है। आप करना चाह रहे हैं, ये है कि अच्छे ऑफिसर, अच्छे अधिकारी नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं, क्या करना चाहते हैं? तमाम प्रोसेस के माध्यम से जब आते हैं तो उसमें डिले होता है। आनंद एक चीज समझना चाहेंगे, नीता जी, हम आ रहे हैं आनंद एक चीज समझना चाहेंगे। आनंद गड़बड़ी फैलाना चाह रहे हैं। आनंद गड़बड़ी नहीं, हम कोई बदला नहीं ले रहे। आनंद एक सवाल हमारा होना चाहिए, बदलाने क्यों नहीं? जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिएगा। अच्छे गति देना चाहते हैं, तमाम बिल लेके आनंद सवाल नहीं सुन रहे। कांग्रेस का भ्रष्टाचार हो, आनंद एक सवाल है हमारा, आनंद एक सवाल है हमारा, बताएंगे उन्होंने जो किया है। अगर हम उनकी गिनती कराएंगे भ्रष्टाचार, पूरा देश संसार दुनिया आनंद मसला तारीफ करेंगे, भारत का गौरव को बढ़ाया। आनंद आप बात नहीं सुन, 40-40 साल तक कई देश के आनंद सवाल तो सुन ले, प्रधानमंत्री नहीं गए, आज हमारे प्रधानमंत्री आनंद सवाल तो सुने। जीवन जो है देश के हित में दे रखा है। आनंद ऐसा लग रहा है जैसे आप भाषण को दे रहे हैं। कांग्रेस के लोग सुन्नी के तरफ बढ़ गए हैं, इसलिए अभी छटपटाहट हो रही है। आनंद सवाल सुन ले। इस वक्त चूंकि सरकार सालगिरह मनाने जा रही है, 1 साल पूरा होने वाला है, तमाम जो सरकारी अधिकारी हैं, तमाम जो मंत्री हैं, वो अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो अहम ये जिन डिपार्टमेंट्स का नाम लिया गया है, ये तमाम के तमाम खाली पड़े हैं, सवाल उठेंगे। तो आप ये सुनिए, एक और गिना रहा हूं मैं, यही कांग्रेस है जो कॉन्ट्रैक्ट में सवाल कांग्रेस का नहीं है, देश का सवाल है, राष्ट्र का सवाल है, देश के लोकतंत्र का सवाल है। यही दिक्कत है, आप कांग्रेस में कूद पड़ते हैं। कांग्रेस का क्यों सुना रहे हैं? देश का मामला है। सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि हमने सवाल भरेंगे, आप क्यों नहीं भरना चाहते हैं? सिस्टम से बताइए, सिस्टम क्या कांग्रेस की तरह हम कॉन्ट्रैक्ट में सरकार नहीं चला रहे। कांग्रेस ने, सुन लीजिए, कांग्रेस ने लॉ सेक्रेटरी 2 साल के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसीलिए सवाल उठ रहा है। कांग्रेस का है ही नहीं, लोकसभा के देश का है, प्रश्न है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डालेंगे। हम लोग
हम लोग रेगुलर भरेंगे वहाँ। चलिए ठीक है, आप प्रॉपर जवाब उसका नहीं दे रहे हैं। चलिए ठीक है, हो सकता है जवाब ना हो इसलिए आप नहीं देना चाह रहे हो। धर्मानी एक चीज आपसे समझना चाहिए, जिस तरह से अगर देखा जाए मोदी सरकार जो सत्ता में आई है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का एक पूरा माहौल वहां पर मिला, और यहाँ पर जिस तरह की बात कही गई है, जिन इश्यूज को डिस्कस किया गया है, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से आपसे रिलेटेड है। ऐसे में सरकार को साल भर खामोशी, सबसे बड़ा किस तरह का दो तीन डिपार्टमेंट थे, जो रेल अहम पद है उस पद पर आपको क्यों बदल दिया? मिथिलेश जी जरा धर्मानी जी कुछ कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं जी कि मैंने जैसे कहा कि विपक्ष सक्रिय हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सक्रिय होने के लिए भूमिका क्या है? प्रश्न ये है, सरकार की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें कि आपने ये भ्रष्टाचार विरोधी एक माहौल बना था। मेरे को आपने प्रश्न पूछा, जवाब वहीं आ रहा हूं। हाँ, आप बोलने तो देंगे कि नहीं? मेरे को यह कहना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध, अभी उपेंद्र भाई ने कहा एक अहम मुद्दा था, स्कैम की सरकार थी, बहुत उठाया गया और पब्लिक ने सपोर्ट किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम जो कांग्रेस को या तो निकाले कि भाई ये चीज है, ये आ रही है। जो पद आप कह रहे हैं, चाहे वो सीवीसी का है, चाहे सीआईसी का, मैं यही कहना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, बिल्कुल गलत है कि इतने समय तक क्यों खाली पड़े हैं उनके हेड के पद। पर क्या चीफ विजिलेंस कमिश्नर अगर नहीं है तो क्या पूरी की पूरी संस्था खाली पड़ी है? ऐसा नहीं है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर नहीं है तो एक मिनट पहले मेरे को अपनी पूरी बात करनी है। आनंद, बिल्कुल मेरे को ये लगता है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर बाकी वो अपना काम कर रहे हैं। अगर एक मिनट, चीफ का पद खाली है, तीन इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं है। एक मिनट, जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर है या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उसकी वजह से उन संस्थाओं के कहीं पर भी कार्य में इसलिए अभी तक ब्रेक नहीं है कि उनके और जो ऑर्गन है वो काम कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि विपक्ष ने आज मुद्दा उठाया, मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं। विपक्ष अच्छा लगा कि सक्रिय हो, लेकिन पूरी सरकार ने एक साल में क्या किया उसको अगर वो स्कैन करते, उस पे कुछ बोलते तो अच्छा लगता। देखिए लोग जो पद खाली पड़े हैं ये नहीं लेने चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आई एम नॉट डिफेंडिंग दैट, लेकिन लोकपाल है, लोकपाल का कोई ऑर्गन नहीं बना हुआ है। अगर साथ में लोकपाल तो एक ऐसा इशू है उपेंद्र भाई कि लोकपाल के ऊपर जितना ज्यादा अभी तक आपने बात पूरी होने तो वो भी 3 पद में 1 पद लोकपाल का भी है और 7 सीआईसी होते हैं, 3 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, उसमें 3 खाली है, फिर वो खाली है चीफ इलेक्शन। तो फिर आप कैसे बोल देंगे सही ढंग से ऑर्गन काम कर रहा है जब उसका स्ट्रेंथ ही कम है बहुत? जाहिर है कि उसका काम भी बहुत धीमा पड़ गया होगा। जो काम 7 आदमी करेगा वो काम 4 आदमी कैसे कर लेगा? तो ये नहीं है। दूसरा है कि सीवीसी है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, वो एक ही पद होता है, वो नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में बहुत सारा काम पूरा उनका ऑफिस ठप हो गया होगा। भी होते हैं भाई, क्यों नहीं होते? मैं खुद जाके मिल के आया हूं। चीफ विजिलेंस कमिश्नर एक ही होता है ना, उसके नीचे होता है, लेकिन उनके नीचे बहुत सारे होते हैं। तो अगर चीफ विजिलेंस कमिश्नर पूरा संस्था जो है वो कभी भी ठप नहीं होती है अगर उसका हेड खाली। फिर वैसे ये इस बात से मैं आई डिसएग्री विद दिस। मुझे ये लगता है हाई कोर्ट में वैकेंसी है, आप जो बात कह रहे हैं कि भाई एक कैबिनेट मंत्री ने बनाया तो काम कैसे होगा? काम तो ठप होगा ही। बना तो काम नहीं होगा। मोदी जी ने मंत्रियों की संख्या कम बढ़ाई थी, कानून के बाद संख्या बढ़ा दी। ये आप देश को क्या बताना चाह रहे हैं? 15 का कैबिनेट बना करके वो काम थोड़े होगा। मैं एक चीज आप बताइए, अभी आप कोई एक डिपार्टमेंट आप बोल रहे हैं कि मंत्री नहीं बनाना परफॉर्मेंस का हिस्सा है। अगर आपने नियुक्त नहीं किया फिर आप कैसे बोलेंगे परफॉर्म कर रहा हूँ? अगर इसे परफॉर्मेंस का सीधा संबंध है नियुक्ति से। आपका जो काम है आप काम नहीं कर रहे, हम परफॉर्म करें, क्या परफॉर्म कर रहे हैं? कैबिनेट नहीं बनाया, एक सेक्रेटरी नहीं बनाया तो काम रुक गया क्या? आनंद, आपसे एक अनुरोध है, आपसे एक अनुरोध है, जब एक जो मेहमान हमारा बोल रहा है वो डिपार्टमेंट ज्यादा व्यक्ति नहीं होगा फिर काम कैसे अच्छा होगा? आपको मौका दिया, आप कोई डिपार्टमेंट में मंत्री नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा? काम तो आदमी करता है ना, कि उसका जो फर्नीचर थोड़े करता है, कुर्सी के ऊपर थोड़े करता है। जी जवाब ले लेते हैं उनसे। जी मेरा ये कहना है कि अगर आप एक छोटा सा बात कहता हूँ, एक कैबिनेट मंत्री है, मान लीजिए अभी लॉ मिनिस्टर अगर वहां नहीं रहते हैं इंडिपेंडेंट, कोई किसी को एडिशनल दे दिया,
मान लीजिए वो देख रहे हैं, तो क्या काम रुक गया क्या? जरूर रुकता है। बहुत सारी ऐसी एकदम काम रुकता नहीं, किसे रुकता है? अभी और वैसे ही लंबा काम बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां पर वाइस चांसलर नहीं है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां नियुक्तियां नहीं हुई है, लेकिन काम बहुत सारे हॉस्पिटल में ढंग के डॉक्टर नहीं है, तो काम तो प्रभावित होता ही है। तो ये आपके टाइम के ही सारा पेंडिंग है। नहीं तो क्या ये कह देना काफी है? क्या ये कह देना काफी है? एक साल के कि आपके अंदर क्या हो रहा है, आप लोगों ने खुद डिस्पोज नहीं किया, इसके कारण वो पेंडिंग देखिए, है। ये मामला हमारी कांग्रेस सरकार ने और तो यहाँ तक कह दिया बीजेपी है का मत कि एक बनाइए। साल में तो सारे भाई केस को अगर निपटा। मैं तो ये मिथिलेश जी, कहूँगी मिथिलेश जी, तो आप बना तो दीजिए अरे भैया, सीबीसी और अभी CIC। मिथिलेश जी, नहीं होगा। आप कांग्रेस कहेगी तभी अब बनाएंगे उसमें क्या? आपके सब नक्की हो देश की जाएंगे। सरकार जो है अभी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए सक्षम है। ठीक कांग्रेस है। बताएगी तब निर्णय लेंगे क्या? ठीक है, ऑलरेडी ठीक है। निर्णय की प्रोसेस में है, निर्णय हो रहा है। पहले ये इसमें क्या है? ये सोनिया जी बताएंगे तब होगा क्या निर्णय? पहले साहू जी ये देखा जाए, ये जो तीनों अहम पद है जी, ये किस काम के लिए है? बिल्कुल सही है। उसमें किस काम के लिए हमको ये बताइए ना। सारे के सारे अच्छे ही काम के लिए हैं, अच्छे काम के लिए। भ्रष्टाचार रोकने के लिए। यहाँ तक ये कि सारे कोई के सारे मना जो थोड़ी कर है, रहा है। आप एक साल के अंदर में आपने साल क्या किसी किया, में नहीं क्या हुआ किया, है। ये कौन देखेगा? इसी में एक साल नहीं हुआ मिथिलेश जी, है। मिथिलेश एक जी, साल के अंदर में आपने क्या और किया विदेश में है? जाकर अगर- स्कैम इंडिया ये कौन बोलेंगे, देखेगा? भ्रष्ट जो इंडिया कौन बोलेंगे। स्कैन करके बताएगा? बिल्कुल, जो उसके पूरे बताइए। चैन है, अभी भी काम कर रही है। नहीं नहीं, तो आप CAG है, हेड को तमाम हटा हेड दीजिए। हैं, बहुत CBC में भी बहुत सारे नहीं नहीं, भाई जो नहीं, मेन जब उसका तक डिप्टी परफॉर्मेंस है, सारे करने हैं। वाला जो तंत्र है उसको हटा दीजिए, क्यों? काम कोई खत्म हो हटा रहा है जाएगा। क्या? कोई घोटाला घपला पता नहीं लगेगा, क्यों इसी ऐसा? को हटा दीजिए। देखिए हमारी सरकार जो है, हमारी इन चीजों से सरकार ऊपर उठ के है, काम वो कर रही भ्रष्ट है। सरकार है। ठीक है, आपकी सरकार काम करेगी, अच्छा मान लिया, वो चलिए, लेकिन छलावे कम से वाली कम दूसरे सरकार को सुनिए। है, आप जनता लोगों को के धोखा पास देने कोई वाली मुद्दा सरकार नहीं है, तो सरकार का समझे? एक दूसरे विषय को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आप इससे जो है कोई जनता तीनों को कुछ पद जो नुकसान- है, इनसे जनता को कोई पूछना चाहती हूँ। नीता जी, जी अंदर फरमाएं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, ये इतनी तेजी से कह रहे हैं तब से सरकार की परफॉर्मेंस के बारे में, मैं परफॉर्मेंस को ही लेकर के चलिए, बताइए आज तक एक कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे हम कोई भी ले लें, पावर का ले लें, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई ले लें, इन्वेस्टमेंट का कोई ले लें, कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक आपकी सरकार के पक्ष में या उन्होंने करा हो जिसको कहाँ सोए हुए नीता जी? मैं पावर का बता रहा हूं, अभी आप सुन लीजिए। 3% पावर का जनरेशन होता है आपके टाइम में, और अभी वो 10.5% पावर जनरेशन होना शुरू हो गया। आप कहाँ हैं? क्या है? आप ये बचकाना वाली बात कर रहे हैं? ना। हमारी सरकार, सुन लीजिए, हाँ। कोल में आप कह रहे थे कि घोटाले नहीं हुए, अभी 20 ब्लॉक को नीलामी करने पर 2 लाख करोड़ आ गई। तो क्या आपको कब आ गई? आ गई, कब आ गई? कब आ गई? अरे भाई किसी बात कर आ रहे गई हैं? सरकार आ का गई। खाते में आ गई। एक-एक करके आप चलते कहाँ हैं। हैं? आप कहाँ आप क्या बोल चलिए, रहे हैं? ठीक है, आपकी बात तो ठीक है, सुनिए। ठीक है, ठीक है। आ गई, कहाँ तक आएगी? जो आप अनुमानित है, हमारी सरकार में खुले आई कुछ नहीं है। क्यों नहीं अभी? आप अनुमानित खाली अनुमानित थे, नहीं। विदेश मिथिलेश जी, जाकर के अपनी जो है मिथिलेश जी, हमें ब्रेक पे जाना है। गिराना चाह रहे हैं, ये सब मिथिलेश जी, हमें ब्रेक पे जाना है। बातें मत करिए, यहाँ सब डाटा है, आनंद, सरकार के खाते में आई आनंद, है, आनंद। और अभी तो मात्र आनंद, हमें ब्रेक पे जाना है। 10%। ब्रेक पे जाना है, इससे बाकी पार्टी का टकराव ना बनाए, ना ये बीजेपी का मसला है, ना ये कांग्रेस का मसला है। अगर देश हित में इस मुद्दे को सोचा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस हिस्से में हम बात करेंगे जीएसटी बिल, जो कि लोकसभा से पास हो गया है, और यह कहा जा सकता है कि बिल के पक्ष में 354 वोट पड़े हैं, 5 विपक्ष में रहे हैं, जबकि 10 जो है एक तरह से सदन से गैर हाजिर थे। तो इस तरह से बिल वहां पर पास हुआ, लेकिन चूंकि जब बहस शुरू हुई तो उस वक्त वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि तमाम दलों को इस पर समर्थन करना चाहिए। कई दलों ने समर्थन किया, कांग्रेस ने भी समर्थन किया था, लेकिन
कुछ और जो है उसमें यह कहा गया था कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिस पे और चर्चा किए जाने की जरूरत है और उसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे जाने की बात की गई थी, जिसे जो है सरकार की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया था और उसके बाद वोटिंग हुई और बिल जो है पास हुआ। लेकिन मसला यहां पर आकर के अटका यह है कि आखिर अगर लोकसभा से यह बिल पास हो जाता है तो क्या राज्यसभा में भी यह बिल पास हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी मंशा पूरी तरह से साफ कर दी है। कांग्रेस की तरफ से वीरप्पा मोइली ने क्या कुछ कहा है इस बिल को लेकर, आइए सुनते हैं। तो हम आपको बता दें कि अरुण जेटली ने इस बिल को पेश किया था कल और उसके बाद उस पर चर्चा हुई थी। आज इस पर वोटिंग हुई है और यह बिल लोकसभा से पास हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने जो उसकी अपनी चिंताएं हैं, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि राज्यसभा में बिल को रोका जाएगा। क्या कुछ कहा गया है वो सुने। These people are blind to the ground reality. They only fly above. But I think, as usual, this government is always, always think what they think they right, and might is right because they have majority in the Lok Sabha, forgetting why they were for a while that they have to get it passed from the Rajya Sabha. और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी सुन लेते हैं। That there would be no tax on tax. Today, if on raw material a tax is paid, thereafter excise duty is paid, thereafter when the goods enter a particular state, some entry taxes are paid, then VAT is paid, different layers of taxation are paid, and you don't get necessarily a set-off for the taxes already paid. And therefore, there is a regime of tax on tax which makes the goods per se costlier. And therefore, the effort has been of the consistent exercise which has gone on from 2003 onwards. How do we come to a system which will bring the prices down in the long run? It may bring inflation slightly down. And economists estimate that it has the potential to give a boost to India's GDP itself. It also helps in empowering the states because the kitty of the states itself would increase. तो कई तरह के फायदे होंगे, कई तरह की शंकाएं भी हैं यहां पर, जैसे कि सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि आखिर टैक्स का जो स्लैब होगा वो आखिर क्या कुछ होगा। अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, केंद्र करेगा या फिर राज्य सरकारों के सर पर वो तमाम चीजें चली जाएंगी। साथ ही साथ राज्य और केंद्र सरकार के बीच में टैक्स बंटवारे को लेकर के क्या कुछ जो है किस तरह से उसकी भरपाई होगी, इस पर भी अभी शंकाएं बनी हुई हैं। लेकिन टैक्स को बढ़ाना है घटाना है, इसका फैसला कौन करेगा, तो कुछ अभी भी ऐसे सवालात हैं जिसे जो है समझना भी बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि लोकसभा से बिल पास हुआ है। कांग्रेस पहले समर्थन में थी, लेकिन अब उसने अपनी मंशा साफ कर दी है कि राज्यसभा में इसको रोका जाएगा। नीता जी, आप ही से समझना चाहेंगे, आखिर अगर फायदे की चीज है तो फिर उसमें इतना रुकावट डालने की क्या जरूरत? देखिए, इसमें एक चीज और जोड़ दूंगा मैं जी, कि और सबसे बड़ी बात यह कि ये बिल आपके वित्त मंत्री द्वारा ही आगे बढ़ाया गया था और स्टैंडिंग कमेटी को भेज के उसकी रिकमेंडेशंस ली गई थी, तो इसका विरोध इतना क्यों? देखिए, कांग्रेस ने डेफिनेटली, जहां तक इस जैसा धर्मानी जी कह रहे हैं, इनिशिएट भी कांग्रेस के ही द्वारा हुआ था और स्टैंडिंग इनिशिएट एनडीए ने किया था 2003 में, इसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, मैं करेक्ट करती हूँ। तो जब स्टैंडिंग कमेटी पे ये गया तो कुछ उसमें चेंजेस अवश्य हुए होंगे। तो केवल कांग्रेस की इतनी डिमांड थी कि इसको एक बार स्टैंडिंग कमेटी में पुनः भेजना चाहिए, क्योंकि कुछ उसमें प्रावधान थे ऐसे, जैसे कि बड़ी स्टेट्स हैं, उनका शेयर किस तरह से, ये मुझे पता है कि उसमें डिटेल्स है किस तरह से डिवीजन होगा, बंटवारा होगा, लेकिन फिर भी ऐसा कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था कि जो ऑलरेडी जो बड़े स्टेट्स हैं जहां पर एक बड़ा शेयर इन टैक्सेस के माध्यम से आता है, वो थोड़ा बहुत उनसे लॉस हो सकता है, लॉस में जाएंगे।
तो इन चीजों को और इनमें क्लैरिटी लाने के लिए, इनको समझने के लिए, यदि ये एक छोटी सी डिमांड थी, इस पे कांग्रेस बाई एंड लार्ज तो तैयार ही थी इसको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर कहीं ना कहीं ऐसी कोई डिमांड थी तो ये तो बहुत छोटी सी डिमांड थी जिसको पूरा करना चाहिए था और उस पर और क्लैरिटी लानी चाहिए थी जिससे लोगों को। आप कहते हैं कि क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से जो है इसको जो है रोका जाना चाहिए। क्लैरिटी नहीं थी, उसके जो भी कलेक्शंस होने थे, इन्होंने ये कहा कि अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में सारे मार्केट्स, जो जितने भी मार्केट्स हैं उनमें एक सा टैक्स हो जाएगा, जिससे कि सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये तो अच्छी चीज है। नहीं, ये अच्छी चीज है। अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो इसमें और क्या दिक्कत? सिंप्लीफिकेशन हो सके उतना अच्छा है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, एक तो ये भी प्रश्न उठता है कि अगर टैक्सेस बहुत कम हो जाएंगे कि तो सरकार के पास भी उतना ही कम जो रिसोर्सेज बढ़ाने का जरिया है वो कम हो जाएगा। दूसरी ओर सरकार कह रही है कि हम किसी भी स्टेट को इससे नुकसान नहीं होने देंगे, हम अगले 5 साल तक उसकी भरपाई करते रहेंगे। तो एक तो एज इट इज रिसोर्सेज कम हो रहे हैं सरकार के, अगर सारे टैक्सेस को मर्ज किया जा रहा है, डिफरेंट पॉइंट्स पे होते थे, भले ही अलग अलग प्रदेशों को उससे फायदा मिलता था, लेकिन कम से कम टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता था। टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन पहले सरकार को ये बताना पड़ेगा कि इसकी भरपाई जिन जिन प्रदेशों, लेकिन हम नीता जी, हम आपको बताएं कि अगर ये चीज लागू होती है तो टैक्स कलेक्शन भी इससे बेहतर होगी पोजीशन। भाई 1 मिनट में एक चीज बताना चाहूंगा जी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी अहम विषय ये है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने ये कहा है कि राज्य सरकार को किसी भी प्रकार से नुकसान इसीलिए नहीं होने दिया जाएगा कि जीएसटी काउंसिल जो है वो डिसाइड करेगी, अध्ययन करेगी किन राज्यों को कितना उसमें टैक्स मिलता था। आनंद, 13वें आयोग ने 13वें वित्तीय आयोग ने कहा था कि इसमें 18% कम से कम होना चाहिए। आनंद, वो तमाम चीजें डिस्कस हो चुकी है। 27% जीएसटी, वो तमाम चीजें डिस्कस हो चुकी है, लेकिन अंतिम निर्णय ये जो जीएसटी काउंसिल है वो लेगी। सवाल आनंद सवाल यहाँ पर आपसे, आनंद जी, जो निवेदन था छोटा सा, जीएसटी काउंसिल ने ऑलरेडी इसको बनाया, इसका फॉर्मूला भी बनाया कि किस तरह से किस प्रोपोर्शन में बांटना चाहिए, लेकिन ये बात केवल जीएसटी काउंसिल तक ही क्यों, इसको क्यों नहीं पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी पर? आनंद, सवाल यहाँ पर यह है कि राज्यसभा से कैसे पास कराएंगे जो मोइली कह रहे? देखिए, पास हो जाएगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सरकार का अपना खुद का कोई हिडन इसमें कोई विषय ही नहीं है। ऑलरेडी सारे, चाहे यूपीए की सरकार रही हो चाहे कोई भी, सभी लोग यूनानिमसली इस विषय को लाना चाहते थे, क्योंकि ये अगर टैक्स लागू होगा तो जनता पे मार नहीं पड़ेगी और जो बाजार में वो सारी चीजें ठीक है, भी मार नहीं पड़ेगी। आपके पास आंकड़े नहीं राज्यसभा में, एक चीज राज्यसभा में आपके पास आंकड़े नहीं है, वो कम से कम नहीं होगा। नहीं, राज्यसभा में आपके पास आंकड़े नहीं है। गरीब मजदूर किसान हर एक छोटे व्यापारी सभी को पड़ता है। आनंद, राज्यसभा में आंकड़े नहीं है आपके पास, कैसे पास कराएंगे? 1 मिनट, क्या कह रहे हैं अंजय जी, बताइए। राज्यसभा में आपके पास आंकड़े नहीं है, कैसे पास कराएंगे? पास होगी क्योंकि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उन सभी को ये विश्वास में लेकर के, उनके सारे सुझावों को लेकर के ये बिल को पारित किया गया है, इसीलिए किसी भी प्रकार का असुविधा होने की कोई संभावना नहीं। मिथिलेश जी, देखिए, राज्यसभा में बिल को गिर जाना चाहिए। अच्छा, समझे ना, इसलिए कि अब तक के कोई डिसीजन ये नहीं है साफ सुथरी। आपकी पार्टी सपोर्ट करने वाली है राज्यसभा में? नहीं, करने वाली एक अलग मैटर है, लेकिन अब तक अलग मैटर कैसे है? जो साफ सुथरी जो डिसीजन होना चाहिए कि जनहित में कितना फायदा देगा सरकार, जो है केंद्र में कितना और स्टेट में क्या देगा, उस पर तो एक उस पर तो आपके नेता जी समर्थन करे हैं। नीतीश जी ने प्रपोज, अगर आम लोगों को राहत मिल रही है जीएसटी से तो फिर दिक्कत क्या है? आपके नेता जी तो समर्थन, ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टेट को मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा ऑलरेडी तय हो गया है। 5 साल आपको हर एक राज्य को वो टैक्स जो नुकसान होगा धर्मानी जी, ये तय है। कई तरह के सवाल अभी भी यहाँ पर कांग्रेस की मंशा साफ कर दी है राज्यसभा में, कैसे ये कह रहे हैं बिल पास करा लेंगे कि कैसे होगा क्लियर? ठीक है, नहीं है ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। ठीक है 18% कहा था, उसको 27% तक ले जाया जाए। आनंद, इसीलिए कि वो भरपाई करना है। आनंद, देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं कि जीएसटी से इस देश में बहुत फायदा होने वाला है, कम से कम जो आम आदमी है उसको, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं
जो मल्टी टैक्सेस के कारण कॉस्टली हैं, क्योंकि कहीं हर स्टेट के अपने अपने आपने देखा है। और अभी जो कुछ हो रहा है इसमें भी जो एक बहुत आम आदमी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो शराब और तंबाकू वाले में उनको आम आदमी नहीं गिनता। एक मिनट, सरकार ने ये कहा है कि 2016 अप्रैल से हम इसे लागू करना चाहते हैं। मैं कुछ और कह रहा हूं, अभी बिल जो है पास नहीं हो पा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि बिल लोकसभा में पास हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, और ये सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 2/3 जहां पे चाहिए वहां पर वो बिल पास करवा सके। राज्यसभा की जो आपने बात कही वहां पर अभी भी भ्रांतियां हैं, पास हो पाएगा या नहीं। लेकिन आम आदमी को इससे अगर नहीं पास होता है तो क्या ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जाएगा? अगर नहीं पास होता है तो सरकार क्या रुख लेगी मैं कह नहीं सकता। लेकिन क्योंकि अभी 16 मेरा ख्याल है अप्रैल 16 में या मई 16 में ये इंप्लीमेंट होना है, उसकी प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए। तो अगले साल वो इंप्लीमेंट होना है, उसके लिए जो प्रिपरेशन चाहिए हर सरकार को, जो स्टेट की गवर्नमेंट है और फाइनेंस मिनिस्टर जो स्टेट के आए हैं वो इस बिल को वेलकम कर रहे हैं, ज्यादातर मेजॉरिटी। तो ऐसे में मेरे को लगता है कि ये विरोध के लिए विरोध है, ऐसा कुछ नहीं है। विरोध के लिए विरोध है। उपेंद्र जी, आपसे इस चीज को समझना है कैसे ये मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि राज्यसभा की स्थिति बिल्कुल अलग है। हमें लगता है भूमि अधिग्रहण बिल भी हम देख रहे हैं कि वहां पे उससे अलग है मामला। हमें लग रहा है कि कांग्रेस भी अंततः मान जाएगी, क्योंकि इसका विरोध करना ये कांग्रेस के लिए भी खतरनाक होगा। ये कोई एक पार्टी के द्वारा तैयार किया हुआ जीएसटी विधेयक नहीं है। ये वाजपेयी सरकार के समय से शुरू हुआ था, असीम दास गुप्ता इसके लेकिन अगर इस चीज को देखें, भूमि अधिग्रहण बिल जो तैयार हुआ था वो भी तो तमाम पार्टियों वो 1-2 दिन में हुआ था, बात कही ना, वो 1 महीने 2 महीने हुआ था। ये 13 साल लगा है, पूरा 12-13 साल से लगातार चल रहा है। इसमें जितना मंथन हुआ है उतना किसी भी विधेयक में आज तक हमारे देश में हुआ ही नहीं है। इसमें सारे प्रदेशों के वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्रियों की कमेटी थी, उसके चेयरमैन भी पहले सीपीएम के असीम दास गुप्ता उसके चेयरमैन हुआ करते थे, सुशील कुमार मोदी भी चेयरमैन बने जब नीतीश सरकार में वित्त मंत्री थे वो, और भी 1-2 बने हैं। तो इसमें जितना मंथन हुआ है उतना तो संविधान बनाने में भी नहीं हुआ होगा। संविधान तो भी बन गया करीब। तो आप मानते हैं कि राज्यसभा कॉम्पिटेंसी है जी, मेरे को इसीलिए इसमें कांग्रेस की जो सिर्फ यही पॉलिटिक्स है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि टैक्स इसका श्रेय मिले। नहीं, श्रेय की अलग बात है, उसमें परफॉर्मेंस दिखाई पड़ने लगेगा ना सरकार का। क्योंकि ये समस्या ये नहीं कि टैक्स आप छोड़ रहे हैं, टैक्स कर रहे हैं, ये है कि जो कर प्रशासन है उसको आप बेहतर बना रहे हैं। तो इस कर प्रशासन को बेहतर बनाने की व्यवस्था है जीएसटी बिल में, और इसमें 2/3 यहाँ से पास करवाना होगा, फिर 50% राज्यों की विधानसभाओं से भी इसको पास करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये आसान नहीं है। नहीं तो 50% हो जाएगा। लेकिन उसके फायदे ये होंगे कि जिन राज्यों में राजकोषीय अराजकता है, कर प्रशासन बहुत कमजोर है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, इवन पहले मध्य प्रदेश में भी बहुत खराब था प्रशासन। शिवराज सिंह चौहान सरकार की सबसे बड़ी सफलता ये रही कि वो कर प्रशासन को दुरुस्त करके वहां पर रेवेन्यू, अच्छा खासा रेवेन्यू आने लगा सरकार का। पिछड़े जो राज्य हैं उनका राजस्व बढ़ जाएगा, राजस्व बढ़ने के बाद उनका जो विकास दर है वो अपने आप तेज हो जाएगा। चलिए, समय छोटी सी टिप्पणी करूंगा कि भारत एक ऐसा देश है, आप हैरान होंगे, लगभग 180 देश विश्व के जीएसटी के ऊपर है, जिस कारण वहां की इकोनॉमी, यहां पे ये देश ऐसा देश है जहां पर मल्टी टैक्सेस, इतने ज्यादा टैक्सेस हैं, कहने के लिए 2% 3%, वो तमाम चीजें जब खत्म हो जाएंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ने वाला है, आसान नहीं हो पाता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। मिथिलेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आनंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उपेंद्र जी, धर्मानी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जय न्यूज।